Hello, I am a CA final student and today we will be doing illustration number 9th of the chapter branch accounts for CA Inter accounting subject. Now let us proceed with our discussion. We have discussed in our previous lectures about the trading and profit and loss account method, in which the branch is treated as independent branch and it prepared its own trading and profit and loss account considering the cost price as the goods that are invoiced by head office. Now let us suppose that the head office has purchased the goods at rupee 100. Now it invoices to the branch at rupees 100 plus 20% markup, that is at 120. So what the branch will do, branch will consider the cost as 120 and not as 100 in the debtors method and the stock and debtors method. In the debtors method and in the stock and debtors method, we used to create branch adjustment account, and in the debtors ledger, in the debtors method, we used to credit the branch account by the amount of surplus. But in this trading and profit and loss account method, we did not do either of the two. We did not either credit the branch adjustment account or we did not credit the branch account with the amount of the markup. So what we do in the trading and profit and loss account method is we consider the cost of branch as 120, not as 100. So the branch prepared its trading and profit and loss account using this rate. This is 120. So the branch has its independent trial balance. This is known as trading and profit and loss account method. So this method also applies to the independent branches. Independent branches means branches which maintain its books of account at its own premises, at its own branch. So these are known as independent branches. So what is the differentiating factor between the dependent branches and the independent branches is that the dependent branches books of accounts are maintained at the head office, but at the independent branches books of accounts are maintained at the branch itself. So the independent branch prepare its own trial balance as we have did in trading and profit and loss account method. So what head office needs to do is they have to merge that trial balance with its own trial balance. So here is the question: the following trial balance as at 31st December 2001 have been extracted from the books of Major Limited and its branch at a stage where the only adjustment required to be made prior to the preparation of the balance sheet for the entity as a whole are to be done. So what do you mean by it? You have to see here that the branch account has a balance of 31,300. Branch in the books of head office, the branch account has a balance of 31,536, and in the books of branch, the head office have a balance of 22,645. So what we need to do first is there might be some reconciling entries in between these two balances. So what we need to do, we have to first find out what are the differences, what are the points that are causing the differences between these two figures, है ना. मतलब एक हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या हुआ, डेटर हुआ, और वो बोलता है कि 31,536 मुझे ब्रांच से लेना है, और ब्रांच बोलती है मुझे सिर्फ 22,645 ही देना है. दिस मीन्स दैट देयर आर सम रिकंसिलिएशन डिफरेंसेस. वी हैव टू फिगर इट आउट एंड पोस्ट द जर्नल एंट्रीज, है ना. अगर जैसे मान लो हेड ऑफिस, अब देखो क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. पहला डिफरेंस हो सकता है कि हेड ऑफिस ने माल भेजा लेकिन ब्रांच ने रिसीव नहीं किया. तो अब देखो ब्रांच ने माल रिसीव नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है ब्रांच ने ये एंट्री नहीं डाली होगी. गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस. हेड ऑफिस कौन है, गिवर, तो क्रेडिट द गिवर. तो ऑब्वियसली बात है ब्रांच ने ये वाली एंट्री नहीं डाली होगी. तो इसका मतलब व्हाट वी नीड टू पोस्ट इज वी हैव टू पोस्ट गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट. कहां पे पोस्ट होगा, ये ब्रांच अकाउंट, ब्रांच की बुक्स के अंदर पोस्ट होगा. अब मान लो और क्या क्या डिफरेंशिएट हो सकता है, मतलब किस वजह से डिफरेंस आ सकता है. एक मान लो कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश दिया, अब हेड ऑफिस ने इसे रिसीव ही नहीं किया, हेड ऑफिस ने रिसीव नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा, हेड ऑफिस बोलेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, क्रेडिट द गिवर. किसने दिया, ब्रांच ने. कैश इन ट्रांजिट इज माय एसेट. तो इस टाइप की रिकंसिलिएशन डिफरेंसेस आ सकते हैं. अब मैंने आपको क्या समझाया कि देखो 100 रुपए का माल अगर हेड ऑफिस हैव इनवॉइस टू द ब्रांच एट 120, दिस मींस देयर इज अ मार्कअप ऑफ 20 रुपीज. तो ब्रांच हेड ऑफिस क्या करेगा, जब ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को अपने साथ मर्ज करेगा, सो द क्लोजिंग स्टॉक विल हैव अ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन इट, दैट इज 20%. ठीक है, मतलब 20 डिवाइड विद 120. लेट्स सपोज जैसे एग्जांपल हम कैसे लेते
थे 100 रुपए का सामान था, ठीक है, 20 रुपए का आपके क्या बोलते हैं 20 रुपए का इसमें प्रॉफिट था, तो 120 रुपए में ये माल इनवॉइस हुआ है टू आवर ब्रांच, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, अब लेट सपोज जो ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेट सपोज इस मतलब जो ये आपका आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ब्रांच क्या बोलेगा, ब्रांच विल प्रिपेयर इट्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडरिंग ₹120 एज द कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में ये जो 20 रुपए का मार्कअप है ना ये आ रहा होगा, तो जब हेड ऑफिस क्या करेगा, इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये 20 रुपए किसकी बुक्स में आ रहा है, ये हेड ऑफिस की बुक्स में आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो हेड ऑफिस के बुक्स में 100 रुपए से तो खर्चा डल गया होगा और 20 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ होगा, तो इसका मतलब हमें 20 रुपए कहां से एलिमिनेट कर दें, तो ये हमें स्टॉक रिजर्व मतलब हम क्या एंट्री डालेंगे, मैं समझाता हूं आपको। तो मान लो लेट सपोज हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है ईयर एंड पे 1200 रुपए का, तो दिस मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू 120 एंड द प्रॉफिट इनहेरेंट इन द प्रॉफिट दैट इज अनरियलाइज्ड इज ₹200. So what the head office will do, head office will post the entry stock reserve account debit, stock नहीं profit and loss account debit, this is my expense, head office क्या बोलेगा, this is my unrealized profit, so it should be debited to my profit and loss because my profit and loss account is more credited by ₹200, so I have to debit it out, we have to debit profit and loss account debit and we have to create a reserve name to stock reserve account, so the entry will be profit and loss account debit to stock reserve. So here is our entry, तो हमें क्या एंट्री डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, डेबिट मार देंगे कितने रुपए से, प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट मारेंगे 20 रुपए 200 रुपए से, है ना, और टू स्टॉक रिजर्व, ये हमारी जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अभी हमें ट्रायल बैलेंसेस दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस डिफरेंस को हमें फिगर आउट करना है, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इस बैलेंसेस को क्लब कर देंगे, ठीक है। अब आप देखो ये जो 693 है ना, ये क्या दे रखा है, अगर आप देख पा रहे हो 693, ये जो नोट 2 है, ठीक है, अगर आप देखो नोट 2 में 693 और ये स्टॉक रिजर्व दे रखा है, तो मैंने आपको समझाया था ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व है, तो 693। अब देखो गुड्स जो इनवॉइस होते हैं, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस चार्ज, मतलब ब्रांच अपना कितने पे बनाता है, 110 के ऊपर बनाता है, ठीक है। अगर हेड ऑफिस 100 रुपए का माल 110 में बेचता है, तो ब्रांच मतलब वही सिंपल सी बात है, ब्रांच डज नॉट नो व्हाट इज द कॉस्ट टू द हेड ऑफिस, सो इट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्ट विच इज ₹110। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, 693 जो था 693, तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग जो रिजर्व था वो था 693, ये अपना फंडा हो गया। अब आप समझो रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 1 जनवरी, ठीक है, मतलब अब ऑब्वियसली बात है ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर जो रिजर्व का बैलेंस है वो है ये, ठीक है। अब अपन चलते हैं अब थर्ड पॉइंट, नोट नंबर 3 कहां पे दे रखा है, यहाँ पे ये मतलब करंट एसेट्स के सामने नोट नंबर 3 इंक्लूड्स गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, मतलब ये जो 23,715 है इसके अंदर एक गुड्स रिसीव मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक जो है इस ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो है 4565, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4565 इज इक्विवेलेंट टू 110, ठीक है। अब हमें 10 रुपए वाली फिगर फाइंड करनी है, 10 रुपए वाली फिगर, तो इसका मतलब कितने रुपए प्रॉफिट है इसके अंदर, 415 रुपए प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो 415 रुपए है, ये जो 415 रुपए है, ये हमारा क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक एंड इट शुड बी डेबिटेड टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको फंडा है, ठीक है। अब आप समझो गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट ₹3641 वर इन ट्रांजिट, मतलब देखो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री डाली, हेड ऑफिस हैव पोस्टेड द एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट बिकॉज ब्रांच इज द रिसीवर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब आपको पता था गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट विल बी नॉट ऑफ विद द परचेज अकाउंट, तो एंट्री क्या हुई, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट एंड जीएसटीबी अकाउंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। अब आप समझो लेकिन ये माल अभी ब्रांच, इसकी एंट्री ब्रांच ने नहीं डाली, सो ब्रांच विल हैव टू रिकॉर्ड इट, तो ब्रांच क्या एंट्री डालता, ब्रांच एंट्री डालता गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। लेकिन अब देखो अब क्या है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ना, हम देखो ये ब्रांच की बुक्स में एंट्री डल रही है, तो ब्रांच क्या बोलेगा, ब्रांच बोलेगा गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। अब हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्वियसली बात है ये क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा, तो हम क्या बोलते हैं इसे हम सीधा बैलेंस शीट में ले जाते हैं, ठीक है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस तो कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, अगर आपको पता हो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस इज सिमिलर टू द परचेज अकाउंट फॉर द ब्रांच एंड इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम क्या बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट,
ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से गुड्स इन ट्रांजिट है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 4565। तो गुड्स इन नहीं कितने रुपए, 3641 था ना, 3641, तो 3641 रुपए का गुड्स इन ट्रांजिट है। किसने दिया ये गुड्स इन ट्रांजिट, टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने 3641 रुपए का माल भेजा है। इसकी एंट्री हेड ऑफिस ने तो डाल ली लेकिन ब्रांच ने नहीं डाली थी, सो आई हैव रिकॉर्डेड इट इन द ब्रांच बुक्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, है ना। एज ऑल्सो रेमिटेंस ऑफ रुपी 3500 फ्रॉम द ब्रांच, ठीक है, मतलब ये क्या है, 3500 रुपए ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजे, 3500 रुपए ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजे, लेकिन हेड ऑफिस ने एंट्री नहीं डाली। तो इसका मतलब अब हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा कि ब्रांच ने मुझे पैसे दिए हैं, तो क्रेडिट द गिवर। तो व्हाट आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड कैश इन ट्रांजिट। तो अब देखो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, है ना, टू ब्रांच। ये हमारा ये पहली जर्नल एंट्री होगी। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हुआ आपका, ये आपका हो गया कितना 3500 रुपए। तो ये हो गया 3500 रुपए से, 3500 रुपए से ये जर्नल एंट्री पोस्ट हुई। मतलब what head office has said that they have not received the cash yet, so they have posted the debit to the cash in transit and credited the giver, that is the branch, so they have posted this entry. अब अपन चलते हैं next entry. At 31st December 2001 the following transactions were reflected in the head office books but unrecorded in the branch books. मतलब ये head office ने अपने books में रिकॉर्ड कर ली लेकिन branch ने अभी रिकॉर्ड नहीं करी। तो ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है अभी हम समझते हैं। The purchase price of lorry ₹2500 which reached the branch on December 25th। मतलब देखो purchase price of lorry मतलब इसका पैसा किसने दिया, हेड ऑफिस ने दिया। तो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री डाली होगी, हेड ऑफिस ने बोला कि मैंने ब्रांच के बिहाफ पे एक लॉरी परचेज करी और उसकी पेमेंट मैंने कर दी, तो आई शुड डेबिट द ब्रांच, क्योंकि मुझे ये पैसा ब्रांच से लेना है। तो इन्होंने क्या एंट्री डाली होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट 2500 रुपए, ठीक है, टू कैश, ये 2500 रुपए इन्होंने पैसे दे दिए होंगे, तो एंट्री डाली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो ब्रांच ने अभी तक इस एंट्री को लिया नहीं है, तो व्हाट एंट्री विल द ब्रांच पोस्ट। तो ब्रांच बोलेगा कि आई हैव, मुझे क्या मिला, मुझे लॉरी मिली, ठीक है, तो लॉरी अकाउंट डेबिट, दिस इज माय फिक्स्ड एसेट, ठीक है, दिस इज माय फिक्स्ड एसेट। कितने रुपए से एंट्री हुई, ये हुई मेरी 2500 रुपए से। तो इन्होंने बोला 2500 रुपए से मेरी लॉरी मुझे रिसीव हुई और किसकी, अब मुझे इसका पैसा ऐसे देना है, आई हैव टू गिव दिस मनी, आई हैव टू गिव द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी टू माय हेड ऑफिस। तो एंट्री विल बी लॉरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, दिस एंट्री हैज बीन आल्सो पोस्टेड। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। अब देखो यहाँ पे सम रिसीव्ड ऑन December 30 फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच के डेटर से मुझे पैसा मिला, तो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री डाली होगी जब पैसा मिला, तो हेड ऑफिस ने बोला होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन। और अब देखो ये पैसा अब जो मुझे मिला है ये मुझे किसे देना है, मुझे ब्रांच को देना है, आई हैव रिसीव्ड इट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब देखो ब्रांच ने अभी तक इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब क्या बोलेगा ब्रांच बोलेगा मुझे ये पैसा लेना है, तो आई हैव टू डेबिट द हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, इट इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 750। तो 750 रुपीज से मुझे डेबिट करना है हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, है ना। और अब ऑब्वियस ही बात है जो मेरे ब्रांच के डेटर्स है वो मेरे कम हो गए होंगे 750 रुपए से। तो अब अगर आप देखो ये एंट्रीज पोस्ट हुई ब्रांच के लेजर में और ये एंट्रीज कहाँ पे पोस्ट हुई, ये हेड ऑफिस के लेजर में पोस्ट हुई। अगर मैं इन एंट्रीज का इफेक्ट इस ट्रायल बैलेंस में दे दूं तो अब हमारी जो बैलेंस शीट है ना वो रेडी है फॉर बीइंग प्रिपेयर्ड, है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, इन एंट्रीज का इफेक्ट दे देते हैं यहाँ पे। तो अब आप समझो हेड ऑफिस अकाउंट क्या हुआ, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस था ब्रांच के बुक्स में, तो ब्रांच ने अब देखो हेड ऑफिस के लिए कौन कौन सी एंट्री डाली, एक तो ये एंट्री डाली तो ये क्रेडिट हुआ, ठीक है, एक है 2500 रुपए की एंट्री डाली ये भी क्रेडिट हुआ। अब लेकिन यहाँ पे 750 रुपए डेबिट हुआ, तो इसका मतलब आई हैव डिडक्टेड इट फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो बैलेंस आया वो आया 28036। अगर आप सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे देखो हेड ऑफिस ने हेड ऑफिस ने क्या एंट्री डाली 31536, है ना, माइनस देखो हेड ऑफिस ने क्या बोला, हेड ऑफिस ने बोला सिंपली बात ये है कि हेड ऑफिस ने क्या बोला, ये 3500 रुपए ब्रांच के नाम पे मतलब क्रेडिट किया है, तो मतलब दे हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम द ब्रांच, मतलब एक तरीके से नोशनल रिसिप्ट है। और इन्होंने एक नया लेजर खोल दिया जिसका नाम है कैश इन ट्रांजिट, ठीक है, कैश इन ट्रांजिट, है ना, कैश इन ट्रांजिट। तो ये कितने रुपए से क्या किया, डेबिट किया ना इसका, तो इसका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है 3500 रुपए से। तो ये आपका देखो अगर आप देखो तो ये ट्रायल बैलेंस वापसी आपका टैली हो जाएगा। तो ये मैंने एंट्रीज का इफेक्ट दे दिया हेड ऑफिस की बुक्स में।
ये अगर आप समझ पा रहे हो, हेड ऑफिस के बुक्स में मैंने इन एंट्रीज का इफेक्ट दे दिया है ना, ये हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्रीज का इफेक्ट दे दिया मैंने। और अब देखो ब्रांच के बुक्स में अभी अपन को देना है, तो ब्रांच के बुक्स में अपन ने हेड ऑफिस लेजर को कवर कर लिया, मतलब ये वाली साइड अपन ने पोस्ट कर दी यहाँ पे, है ना। मैं इसे कलर कर देता हूँ, जो हमने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दे दिया है ना। ये भी हमने ये भी पोस्ट कर दिया, ये भी हमने पोस्ट कर दिया, मतलब जो हेड ऑफिस जो क्रेडिट हुआ वो हमने पोस्ट कर दिया। अब देखो हमें 2 लेजर नए बनाने पड़ेंगे। एक तो होगा जिसका नाम गुड्स इन ट्रांजिट, है ना, गुड्स इन ट्रांजिट, एक गुड्स इन ट्रांजिट, है ना, गुड्स इन ट्रांजिट। अब देखो ये क्या बोला, ब्रांच ने बोला, ब्रांच के लिए क्या हुआ, डेबिट बैलेंस हो गया 3641, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट। एक हो गया लॉरी अकाउंट, ठीक है, लॉरी अकाउंट। अब अगर आप देख पा रहे हो इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस है 2500 रुपए। और ब्रांच डेटर्स अब हमारे कम हो गए, तो ये ब्रांच डेटर्स कहाँ पे आ होंगे, ऑब्वियसली बात है, ये दिस शुड बी इन माई करंट एसेट्स, ठीक है। तो अब मेरे जो करंट एसेट्स है वो कम हो गए, और वो कितने बन गए, 750 से कम हो गए। तो अब देखो अब मेरा रिवाइज ट्रायल बैलेंस ना वो वापसी टैली हो जाएगा। तो अगर मैं सम कर दूं इन सारी फिगर्स का, डेबिट एंड क्रेडिट, तो इट शुड टैली, है ना। तो 48,000 रुपए साथ। तो मैंने क्या किया, ये जर्नल एंट्रीज पोस्ट करी और इनका बैलेंस मैंने अपने ट्रायल बैलेंस, इसका इफेक्ट मैंने कहा दे दिया अपने ट्रायल बैलेंस में दे दिया, जो कि ओरिजिनल। अब हमारा ये क्या बन गया, रिवाइज ट्रायल बैलेंस। अब आप समझो कि जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना था। एक तो हमें दे रखा है, एक तो हमें जो दे रखा है 4565, तो ये था, तो 4565 तो ये था, प्लस 3641 ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना, गुड्स इन ट्रांजिट सिमिलर टू क्लोजिंग स्टॉक, तो इतने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था। अब हमें पता है कि इसके अंदर जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो कहां पे छुपा हुआ है, हेड ऑफिस के बुक्स में। तो 8206 को अगर मैं डिवाइड विद 1.1 कर दूं, मतलब 110, ठीक है, अगर ये 110 के बराबर है तो 10 कितना होगा, तो दिस इज प्रॉफिट एलिमेंट। तो 746 रुपए क्या है, प्रॉफिट छुपा हुआ है। प्रॉफिट कहां पे छुपा हुआ है, हेड ऑफिस के बुक्स के अंदर। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली एंट्री डालनी है। तो मुझे हेड ऑफिस के बुक्स में क्या डालनी है, ये हेड ऑफिस के बुक्स है, तो मुझे यहाँ पे क्या एंट्री डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब देखो कितना प्रॉफिट छुपा हुआ था हमारा यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो हमारा प्रॉफिट जो छुपा हुआ था वो 746 था। अब देखो ओपनिंग जो प्रॉफिट छुपा हुआ था उसका बैलेंस है 693, मतलब 693। दिस बैलेंस इज ऑलरेडी कमिंग इन द स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो अब अगर आप देखो तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ, इंक्रीमेंटल हुआ सिर्फ 746 माइनस 693। तो इतने से मुझे एंट्री डालनी है इन माई प्रॉफिट एंड लॉस। तो व्हाट वी हैव टू डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि 693 तो ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस पड़ा है, एंड आई हैव टू, इसे हमें कितना पहुंचाना है, आई हैव टू ब्रिंग दिस टू 746, सो आई हैव टू डेबिट माई P&L विद दिस अमाउंट 53 अमाउंट, है ना। तो 53 से मैंने क्या किया, P&L को डेबिट किया और एंट्री डाली P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। तो माई एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। अब देखो अगर आप इस एंट्री का भी इफेक्ट दे दो, तो अब जो आपके सामने आएगा, मतलब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ये आपकी जर्नल एंट्री हुई। तो अगर आप समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपकी जर्नल एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। अब आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे, यहाँ पे ये जो रेवेन्यू अकाउंट है ना, दिस इज सिमिलर टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रेडिट बैलेंस है और हमने क्या किया, डेबिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई शुड डिडक्ट इट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो गई 43। अब इसका जो बैलेंस आया 43,157 एंड आई हैव टू एड इट इन द स्टॉक रिजर्व। मैं स्टॉक रिजर्व में हमने कितना ऐड कर दिया, 53 रुपीज। तो मतलब सिंपल सी बात है, जितना बैलेंस आ रहा था और जितना लाना है, इसके डिफरेंस की एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हिट करी और ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। तो अब जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट किसका, हेड ऑफिस का जो करेक्ट प्रॉफिट आ रहा है, दैट कम्स आउट टू 43,157। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 43,157 यही प्रॉफिट है, ये 43,157, ठीक है। हमारा जो ब्रांच अकाउंट हमने ऑलरेडी बना दिया 28,036, ये हमारा ये रहा बैलेंस, है ना। तो ये मैं आपको स्टडी मटेरियल का टैली कर रहा हूँ कि हमने जो हेड गुड्स इन ट्रांजिट हमने कर ही दिया, मोटर व्हीकल कर ही दिया, सन्ड्री करंट एसेट्स भी हमने ये एंट्री भी कर दी 22,965, ये रहा 22,965। तो ये सिर्फ इन्होंने लेजर पोस्ट किए। आप क्या करो, अगर इन जर्नल एंट्रीज को आप 8 लेजर्स बना दो तो अब आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको वो जर्नल एंट्री माइंड में रखनी है एंड यू हैव टू पोस्ट इट इन द ट्रायल बैलेंस। और पेपर में आपको क्या करना है, इनके लेजर अकाउंट्स भी बना देने हैं। वो बहुत सिंपल है, मतलब पहले आपको जर्नल एंट्री क्लियर होनी चाहिए, फिर आप लेजर अकाउंट तो आप कैसे भी बना दोगे। Here we complete our illustration number 9. Hope you have liked the video. Please do subscribe to my channel and do comment in the comment section whether how much you have liked this video. Please do, your comment motivates me, so please do comment.